Hello all. So today we have with us Shivang Srivastav, who has secured All India rank 102, and Rajiv Agarwal, who has secured All India rank 103. So it is a coincidence that we have 102 rank and 103 rank in the house, and they met yesterday only, and they are both from geography optional and student of guidance IAS. तो जानते हैं इनकी प्रिपरेशन कैसी रही, कैसी यूपीएससी की जर्नी थी, और खासकर ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ इनका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था. एंड दे हैव ऑलरेडी गिवन इंटरव्यू इन द लास्ट अटेम्प्ट्स, and Rajiv Agarwal has already been selected in the last attempt. And so we will start looking into their journeys और क्या nitty-gritties थी यूपीएससी की, और ज्योग्राफी ऑप्शनल स्पेसिफिक क्या उनके एक्सपीरियंसेस थे, उनको डिस्कस करेंगे. सो हिमांशु सर, would like to ask some questions first. First of all, congratulations to both of you for making me so much proud. Both of them are students who have been close to me. Rajiv, in fact, we have met several times, and so I know personally their journey of how they have gone through. But I would just like first each of them, both of them, to just give a brief about how their journey has been. Particularly, for example, if I talk about Shivang, he has got this rank in his last attempt. So it is like you can ultimately understand कि last में उतनी मेहनत के बाद finally फल मिलता है अगर आपकी मेहनत में दम है. So he is a example of that. Same if you talk about has been the case with Rajiv. It was also his fifth attempt. So he has been quite persistent in his preparation. बहुत मेहनत की है और finally उसका result मिला है. So शिवान सबसे पहले start करो. Thank you so much, sir. And मेरी journey, I have done BTech from chemical engineering in 2016. And after 2016, I got placed, but I did not join. और मैं यहाँ आ गया दिल्ली में preparation करने के लिए. So I gave my first attempt in 2017. Then I did not clear prelims. The second में मैंने mains लिखा, clear नहीं किया. Third attempt में फिर से prelims नहीं हुआ. And the fourth attempt which I gave, I cleared prelims, I cleared mains, and I gave interview, लेकिन फिर final list में नाम नहीं आया था. Fifth attempt was slightly shocking attempt for me because here I doubled down the effort, है ना, बहुत मेहनत किया, लेकिन इस बार mains ही clear नहीं हुआ. तो that was a very game changer attempt for me, fifth attempt, because जब result आया 3-4 महीनों के बाद, तो there I saw that मेरे marks geography में comparatively कम थे, and which I did not expect. मुझे लगा था मैंने बहुत अच्छा लिखा है. So initial तो यही होता है कि शायद marks नहीं मिल रहे है ना, marks देना नहीं चाह रहा सामने वाला, ठीक है, लेकिन with time you have to introspect, and I did that as well. So I felt that there is something which is lacking in my whole approach since the starting when it comes to geography. तो उस समय I took a decision which was not an easy one, to ultimately give up whatever I have been doing until now and look for something else within the geography, because changing optional was not at all an option for me, especially after 5 attempts. So then so one of my friend recommended 500 plus classes. So I did one class. मैंने एक experimental class की, mock class की कि देख लेते हैं भाई, ठीक है. तो I sat for 4 hours and I did, and I was more than 100% convinced कि भाई this is what was lacking. So after that the journey was smooth, ठीक है. वो 3 महीने होते हैं 500 plus class के, तो जैसा जैसा आपने गाइड किया मैंने वही चीजें की, है ना. क्लास करना और नोट्स बनाना, रिवीजन करना, 7 रिविजन्स का जो प्लान है, and then ultimately everything came out very smoothly. और टेस्ट रेगुलरली दो. फाइनल जो मैंने टेस्ट लिखा, जो जीएस पेपर 1-2, तो इट वाज नथिंग, आई मीन ऐसा नहीं लग रहा था कुछ स्पेशल है, कोई एग्जाम लिखने बैठा, ऐसा लग रहा मॉक टेस्ट पेपर ही लिखने बैठा है. तो बस दैट्स हाउ इट एंडेड ब्यूटीफुली. द journey was slightly long and tough. All's good. It meant to be that way. Yes. अब राजीव सर से पूछते हैं कि राजीव, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? और he has done 500 plus at least 4 time I guess, और काफी सारा जो टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, बहुत सारे आंसर कॉपीज हैं which will be sharing shortly. तो राजीव से पूछते हैं what was his personal journey in UPSC. Thank you, sir.
Sir, I completed my BSc and MSc in 2015, and after that, I was placed in TCS, but I did not join. That same year, I got job as probationary officer in State Bank of India, and since 2015 to 19, I worked in State Bank of India, and two of my friends pushed me into this civil services journey. I had not planned for this. I'm grateful to them, not just happy. So after that, I came here. I enrolled in some course, took a optional from there. I did not know about guidance that time. So in my first two prelims, 19 and 20, that were my first attempt in 19. I could not clear the prelims exam. In my third attempt, I missed my interview call by 1 mark. Uh, in 22 attempts, that was my fourth attempt. I got I secured 269th rank, and I was allocated to IRS income tax that year. And one of the most important thing in my selection was geography itself, not as an optional itself. I was also benefited in paper one particularly. I got very high marks compared to other candidates that year. And in my fifth attempt, I've secured 103 rank, and I'm expecting also good marks this year also. And I'm grateful to sir for that. Uh, and rest, Let's keep the conversation in English. It is good for everyone. सो शिवांग मतलब कैसा एक्सपीरियंस था ज्योग्राफी के साथ? ठीक है, काफी नेगेटिविटी है मार्केट में, काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट रखते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर वो एक दिन मेट्रो पकड़ के ORN आते हैं और वो अपना ऑप्शनल चेंज कर देते हैं। एक तो 4-5 साल से एकेडमिक्स के अंदर ज्योग्राफी इतना कुछ सीख चुके हैं, उसके बाद आके यहाँ पर चेंज कर देते हैं। जो ऑलरेडी ज्योग्राफी के अंदर स्टूडेंट्स हैं, 1-2 साल या तो उनके पास अच्छा कंटेंट नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, या फिर उनकी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, और वो क्या है कि और नेगेटिविटी को आगे पंप अप कर देते हैं। तो ज्योग्राफी की जो ये एक मिस्ट्री बन चुकी है, डिलेमा बन चुकी है, और एक अच्छा, इतना अच्छा एक डिसिप्लिन है, तो उसके साथ तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या थे? और अगर किसी को आज फॉर 2025 2026 ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो क्या उसके लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? टू स्टार्ट विद द डिसिप्लिन इटसेल्फ। देखो, मैंने भी बहुत फेलियर्स फेस किए हैं ज्योग्राफी के साथ ही, बट स्टिल आई वुड से दैट आई डू नॉट डिसलाइक द डिसिप्लिन। द वेरी रीजन फॉर मी जॉइनिंग ज्योग्राफी वाज कि मैंने 10th तक क्लास तक पढ़ा था ज्योग्राफी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था पढ़ने में। द रीजन बीइंग, शायद 10th क्लास तक के जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे ज्योग्राफी पढ़ाने वाले। ठीक है, बिल्कुल। तो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस। ठीक है। और बहुत सारा ओवरलैप है जीएस के साथ भी, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज अ हिडन थिंग फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, यस। है ना, जो वो बेनिफिट मिलता है जीएस में। सो पर से ऑप्शनल्स में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ज्योग्राफी का जो एक परसेप्शन है ना जनरल मासेज में, वो अभी भी लिमिटेड है फिजिकल ज्योग्राफी तक ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इफ यू आर जंपिंग इनटू अ सी, यू हैव टू चार्ट द वाटर्स, ठीक है। तो वो असेसमेंट थोड़ा सा हमें बेसिक रिसर्च करना होगा बिफोर चूजिंग ज्योग्राफी और एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इट, because if you are doing that basic research well, there is human geography, economic geography, population, settlement, है ना। First attempter might not go into that depth कि scholars कौन है, क्या क्या है, लेकिन एक broad अगर overview है, then the person would be better able to assess कि मुझे as a foundation करना क्या है ना, कि that range of awareness will help the person, ठीक है। तो that's the thing कि the basic foundation where है ना you are doing that should be very strong only, as sir says, फाउंडेशन अच्छा होगा तभी इमारत अच्छी होगी, है ना। और अगर फाउंडेशन खराब है, फिर जितना भी एड ऑन्स वैल्यू एडिशन करते रहो, एंड इवन इफ यू लाइक द डिसिप्लिन, तब भी हो सकता है रिजल्ट्स ना। और दूसरा, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज अ डिफरेंट थिंग, and geography within civil services is a different thing. True. So the basic torch that we have is our syllabus. Yes. तो वो बहुत ज़्यादा उसी के अकॉर्डिंग्स में चीज़ें होनी चाहिए। That should, I'm not giving the details of the strategy, but the fundamentals of the strategy Yes, should yes. be these things, I would say.
और उसके अलावा जो जनरल चीज़ है आंसर राइटिंग, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट, Hmm. and not just answer writing but also assessing where I went wrong Hmm. and trying to fill the gaps which are existing. राजीव सर, आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंस थे और ज्योग्राफी ने कितना टॉर्चर किया या फिर कितना इवॉल्व किया एज अ पर्सन और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को? सर मुझे ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा एंड जैसे शिवांश ने कहा कि हमको केवल ज्योग्राफी को एज ए ऑप्शनल नहीं देखना है, वी विल हैव टू टेक इट लाइक अ कॉम्बो। हमें GS1 GS3 और जो ओवरऑल बेनिफिट होता है वो देखना पड़ेगा सर। 100 मार्क्स का हम GS1 में देखें, GS3 में अराउंड 30-40 मार्क्स का ओवरलैप होता है एंड apart from that sir, lot of things which are in newspapers they can be asked in interviews also, which are related to India itself. So I liked it एज अ सब्जेक्ट सर वेरी मच। एंड जैसा सर कहते थे हम रिसर्च करने नहीं बैठे हैं और जितना एग्जाम निकालने के लिए है उतना सर प्रोवाइड कराते हैं। तो सर मुझे लगता है कि जो एज अ सब्जेक्ट ज्योग्राफी में कोई इश्यू नहीं है सिलेक्शन के लिए, लेकिन जो हम स्टार्ट बेकार कर देते हैं उसके बाद हमको जो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है उसको बेटर करने के लिए, वो सर हमारा टाइम ले जाता है दूसरे सब्जेक्ट्स में जो हम नहीं दे पाते हैं। और मेरे केस में सर जो पर्सनली मुझे लगता है कि मैंने शुरुआत में सर के क्लासेस किए लेकिन जो स्ट्रेटजी थी पूरी फॉलो नहीं की और मैंने उतनी मेहनत नहीं की, लेकिन ज्योग्राफी इज अ वेरी रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट एंड आई कैन से दैट कि इन 2021 सर मुझे 256 मार्क्स मिले थे ज्योग्राफी में एंड 2022 में सर मुझे 127 जीएस में मिले, 280 मुझे सर ऑप्शनल में मिले एंड दे वर वेरी गुड मार्क्स सर, 146 इन पेपर 2। और सर ये मेरा सिलेक्शन तब हुआ सर जब मेरे जीएस में 400 मार्क्स भी नहीं थे 127 आने के बाद में। आई कुड नॉट टच 400 मार्क्स एंड एवरीथिंग वाज फ्रॉम ज्योग्राफी इटसेल्फ, क्योंकि स्कोर इतना ज्यादा आ रहा था। और सर ने बोला ये पहला अटेम्प्ट था 22 में जिसमें मैंने सर की बातों तक स्टिक किया, अपने पुराने नोट्स को बिल्कुल अलग रख दिया, सर के नोट्स को किया। और मुझे लगता है कि अगर आप सिंसियरली सर के क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं और इन केस अगर आप ज्योग्राफी लेने आ रहे हैं तो सर का फाउंडेशनल कोर्स there is no one other than guidance IS that I can say, like you can take my personal guarantee for that. So I'll say कि if you are able to put in your hard work as sir says, you are able to do revisions from limited that source and you are able to write test series and geography test series, and you can go through test series also. One more thing, you will find that a lot of questions are on the similar themes or from the same topics, or the same questions are also there from the geography test series of this year. So I'll say कि this is very good subject if we are like going for the civil services in terms of output. If we are taking the right approach from the start, we are taking the right guide from the start and right process from the start. Thank you sir. मेरा भी मतलब यही सेम व्यू है कि जो ज्योग्राफी में जो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, प्रॉब्ली अगर आप देखोगे तो 21st सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था, इन दैट ज्योग्राफी वाज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑप्शनल। आप देखोगे कि टॉप 10 में हर साल कम से कम 2 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, अभी भी है होते हैं, बट जो उस टाइम पर जो सिलेक्शन रेट था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। 2008-9 के बाद से जो सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद थोड़े एग्जामिनेशन के पैटर्न्स में चेंजेस आ गए, तब से थोड़ा-सा ज्योग्राफी में सिलेक्शंस उतने अच्छे नहीं रहे जैसे पहले होते थे। बट उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि आप अपनी जो क्लासेस करते हैं, फाउंडेशन क्लासेस वो कहाँ पर करते हैं? क्योंकि फाउंडेशन क्लासेस ही आपकी पूरी की पूरी ज्योग्राफी की इमारत को बिल्ड अप करता है। और जैसा कि मैंने बताया 2008-9 के बाद से जो पैटर्न चेंज हुआ, उसमें हुआ ये कि अब ज्योग्राफी में हर जगह से क्वेश्चन पूछे जाने लगे, जो उससे पहले नहीं होता था। उससे पहले आप अगर 40-50% अपना सिलेबस कर लो, तो आपका काम हो जाएगा, बट अब नहीं, अब आपको 100% करना है। और ज़्यादातर क्लासेस जो होती हैं, वो जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो थोड़ा-सा जीएस लेवल का पढ़ाते हैं और कवरेज भी जो होता है, वो पूरा नहीं होता है। क्योंकि जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि ज्योग्राफी इज़ अ डिसिप्लिन व्हिच इज़ वेरी डाइवर्स, ठीक है? बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल है। तो ये सबके बस की बात नहीं होती है कि वो हर जो ज्योग्राफी के ब्रांचेज़ हैं, उसमें वो उतनी ही कमांड बना पाए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फाउंडेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो बिगाड़ता है और बनाता है।
तो अगर आपने फाउंडेशन सही किया है तो देन डेफिनेटली ज्योग्राफी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। थोड़ा आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। बोथ ऑफ देम हैव देयर फिफ्थ एंड सिक्स अटेम्प्ट, तो बहुत लॉन्ग जर्नी है, 6 to 7 years और मे बी मोर देन दैट। ठीक है, तो इतना लंबा जो टाइम था उसमें एक तो पर्सनली खुद को कैसे मोटिवेट रखा, जो पर्सनल चैलेंजेस आए उनसे कैसे नेविगेट किया। एंड शिवांग वाज आल्सो डूइंग इवैल्यूएशन वर्क एट विजन आईएएस, सो ही वाज also getting some sort of another answer writing neck बोल सकते हैं। जब हम आंसर राइटिंग के अंदर कॉपीज चेक करते हैं तो हमें एक नया क्या है कि एनलाइटमेंट होता है। ठीक है, तो उसकी बात भी करेंगे हम। बट जो पर्सनल जर्नीज रही थी और उसके अंदर जो एक फेजेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन आते हैं उनके थ्रू कैसे नेविगेट किया अपने आप को, सो आई वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू। सर आई थिंक शायद हर इंसान का एक अपना खुद का डिफरेंट अप्रोच हो सकता है हाउ टू डील विद डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर इन लाइफ। तो मैं अगर कहूँ तो फॉर मी whenever such a thing happens, let's say you give exam, you did not clear it, so for 1 week don't take decisions regarding anything and try to do what you like. For example, मैं तो घूमने निकल रहा था, ठीक है, ऋषिकेश, काठमांडू, एंड क्योंकि उसमें ये भी होता है ना, ज्योग्राफी का पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी, तो उसमें ये है कि whenever you come across a culture which is very different from your daily mundane life, एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है कि दुनिया और भी बड़ी है, ठीक है, वो उस करोल बाग और मुखर्जी नगर में सीमित नहीं है। तो अल्टीमेटली देखो बहुत चीज है, स्ट्रेस के लिए डेली बेसिस पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन, लेकिन आई थिंक जो फंडामेंटल पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ है ना, वो फेलियर्स शेप करते हैं और वही पर्सपेक्टिव्स फेलियर से डील करने में भी हेल्प करते हैं। वेरी गुड। तो वो पर्सपेक्टिव इवॉल्व होना भी आई थिंक पार्ट ऑफ नॉट यूपीएससी, पार्ट ऑफ लाइफ है। राजीव, what about you? Sir, I was a working candidate throughout all of my 5 attempts, and I was working as Naib Tahsildar in government of Uttar Pradesh. So I had a very limited time, sir, for these things. So first thing was I had maintained like I programmed myself to study for at least 4 hours in weekdays, and on Sundays I used to study 7 to 8 hours. And sir, after every failure, I used to think that I have not given my that hard work or a strategy did not work. I did not try to blame anybody, and I knew that things were lacking in my results, in my outcomes, were on me itself, not on the I did not read. The strategy was not good. I did not selected like good content. Sir, I picked up every yellow that sheet of paper, sir, from the ORN market, and brought it through courier to sir myself, and I limited, sir, my resources. And after that, my strategy was that limiting everything, sir. I limited my optional totally to such guidance IS. I wrote only one test series at guidance IS, and in the syllabus also, sir, I tried to focus on 80% of syllabus, and I was like that ki whatever topic I am able to understand with minimum efforts, I'll be learning that at mastery level, and whatever I'm not able to understand with more efforts, I will not be doing that thing at all. So, sir, my strategy focused purely on the sir 2080 rule. We can say that. So it has benefited me well, sir. And over the time, sir, I'm grateful to God that He has given His blessings to me over the time. And I cannot say that journey for me has been so much troublesome, and it has taken a long time to reach here. But compared to my efforts, I have sir given commensurate results, sir. I would like to ask a very interesting question on this from Rajiv. What do you think? Because as you told me that told just now that the journey has not been so much problematic. So what do you think about the issue in UPSC about having a plan B? Because I think that having a job kind of gave you a security, a balance of mind, and very important thing which you said, that 80-20 rule. Because if suppose I am someone who is unemployed, okay, I will always tend to go for maximum ideal, because मेरे को नौकरी चाहिए भाई किसी भी हालत में, ठीक है, तो मैं वो रिस्क लेने की स्थिति में नहीं हूं कि वो 80-20 का रिस्क ले पाऊं। मैं कोशिश करूंगा
कि मैं पूरा 100 ही कर लूँ, Yes, sir. और वो फिर प्रिपरेशन जो है आइडियल की तरफ चली जाती है और वो डीरेल हो जाती है. Yes, sir. So what do you think about this issue of having a plan B? Sir, I'm very certain, sir, that this plan B, which job I was having, it helped me a lot as a person. Uh, Sir, it forced me to prioritize things. I cannot go like a regular candidate. That I don't have like 8 hours, 10 hours with me. First of thing, we see lot of material, so we have to limit that. We have to limit the test series also, sir. We have to find out the best resources with us, and even if we see any subject, be it optional or GS, if we go through the themes of the paper, they are recurring themes in the paper, you will get, sir, most of the themes from the 70-80% paper, 70-80% syllabus. And sir, and those themes are so much recurring that almost all the paper can be done. And you can get at least your name in the holy PDF, we can say. So sir, that helped me a lot. And sir, one more thing was there. My job was a like very hectic job and public oriented. So it helped me in the sense that I had financial security with the job itself. And one more thing, that when I got failures, so I was with the people, among the people. So and I used to go to these fields, etc. That was my job, part of my job. But I used to like make it more happening, and I feel, sir, that failures make officers more empathetic in their official workings. It brings humility, which we carry on throughout your life, sir. So it was a blessing in disguise कि if you are working aspirant, तो वो कहीं ना कहीं blessing in disguise भी रहती है कि हमारे पास टाइम ही उतना होता है कि हम important चीज़ों पे ही फोकस करते हैं और रबिश को क्या है कि इंक्लूड नहीं करते हैं अपनी प्रिपरेशन में. चीज मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज एवरी डे वी गेट स्टूडेंट्स आस्किंग दिस काइंड ऑफ कैरियर काउंसलिंग की. जैसे अभी कुछ दिन पहले वी वर टेकिंग वन सेमिनार, सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क की शुड आई गो फॉर माय मास्टर्स इन JNU और अल्टीमेटली आई शुड जस्ट प्रिपेयर फॉर UPSC. तो आई ऑलवेज से कि हमेशा एक प्लान बी रखना एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज इस एग्जाम में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं, और ये जो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं वो हमारे पे डिपेंड नहीं करती हैं, दे आर सम आउटर फोर्सेस ऑल्सो. सो वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हम गारंटी नहीं दे सकते हैं हम कितनी भी मेहनत कर लें कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा. ठीक है, तो ऐसे में अगर हमारे पास प्लान बी है तो हमेशा वो आपके दिमाग को, आपकी अप्रोच को, हर चीज़ को बैलेंस रखता है. तो डेफिनेटली ऑलवेज आई एडवाइज एंड प्लान बी हमेशा रखना चाहिए. और दूसरी बात, जो जॉब करने वाले स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं अगर आपने अपने प्लान को सही बनाया है, तो अपनी जो टाइम और स्पेस की जो लिमिटेशंस हैं उसके हिसाब से. वन मोर क्वेश्चन मैं जो पूछना चाहूंगा कि एक यूपीएससी के लिए करेक्ट मोटिवेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि जो प्री कोविड टाइम्स में मोटिवेशन था स्टूडेंट्स का उसमें भी कई सारे डाइवर्सिटी थी मगर एक अच्छा मोटिवेशन हुआ करता था स्टूडेंट्स के पास. अभी जो रीसेंट टाइम्स में स्टूडेंट्स आ रहे हैं इनके पास बहुत ही क्विक फिक्स टाइप सा मोटिवेशन है, या तो ओवरनाइट मोटिवेशन मिला है कहीं से यूट्यूब के वीडियोस से, रील्स के थ्रू, और यूपीएससी में लैंड हो गए हैं. रियलिटी नहीं पता है कि यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो हार्डवर्क है, जितना परसिस्टेंस लगाना है, उतना ही जॉब के बाद 10x और है. ठीक है, तो एक रियलिटी से जो डिटैचमेंट है और एक जो ग्लैमराइजेशन है यूपीएससी एज अ जॉब का, तो एक करेक्ट मोटिवेशन, व्हाट वाज योर मोटिवेशन, और एक करेक्ट मोटिवेशन क्या होना चाहिए ताकि हम क्या है कि अगर हमारी जर्नी लॉन्ग भी हो जाती है तो उसमें हम क्या है कि प्रॉपर्ली क्या है कि मोटिवेटेड रहें पूरे प्रोसेस में. इसमें जैसे ना जो आपने इनिशियली कहा, देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो और जितना भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है इट विल ओनली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल. ठीक है, तो फॉर अ लॉन्ग टर्म मोटिवेशन आई थिंक उस प्रोसेस में जितना आप इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल what a civil servant is expected to do if you become an IAS officer, what a career civil servant look like, उसमें जितना बेसिक रिसर्च होगा वो करना चाहिए. और सेकेंडली जो एग्जाम प्रोसेस है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है ना, गोइंग थ्रू द सिलेबस, गोइंग थ्रू द बेसिक कंटेंट विच वन हैज टू प्रिपेयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ईयर लॉन्ग जितना इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा रादर देन द एक्सटर्नल मोटिवेशन. ठीक है, वो इन्वॉल्वमेंट अपने आप इंटेंट अपने अंदर जनरेट करेगा ना. इवन आई थिंक
even in cases of failure, na, this is a very strange thing which I have noticed with exam. It even strengthens more your resolve to further improve yourself. Right? I mean, I have not. I don't think that this is true in any other field, but in case of UPSC it is true. ठीक है कि जहाँ आप फेल हो गए तो वो एक इट इज अ चैलेंज ऑल्सो यू फेल है ना तो फिर वो अगर दैट इंटरनल मोटिवेशन इज वेरी स्ट्रांग then you will try to take on that challenge head on. So that's the only reason that people tend to give so many attempts. Rajiv? Sir, my initial motivation, as I told you, I came in this field because of my two friends who had already exhausted their attempts. So it was kind of like I can say whatever they described to me at the time. But when I got here, I got in the state PCS in the first attempt, and I was the part of their basic administration. And I got to know that I have to work hard in the studies because even after you get selected, you have to give a lot of hours more than you require here to study. Second thing, my job was mostly people connected on the grassroots levels, and I felt that this is kind of a job which is kind of bouquet a person sees in a like his career opportunities, development perspective, which it provides to your personality, financial security, everything which you want to do as a human being while doing your professional life. This is a service which provides you that. So in my job in a limited capacity, there were instances that you feel very grateful to the god and the responsibility they have bestowed upon you, that you are able to serve people to some extent. There are small things which you can do for the people, and they are like these opportunities are not available in other jobs. So it makes me really motivated. And when people used to come and I was able to think myself as an administrator, and that thought that I can contribute more as a officer in the poor people's life, especially to whom nobody listens, that was my constant motivation throughout my career, sir. ठीक है, सो वी विल बी एंडिंग द सेशन. बस एक लास्ट $1 million क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हारा ही जूनियर है तुम्हारे सर्कल में आके पूछता है कि मैं यूपीएससी तैयारी चालू कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ज्योग्राफी ऑप्शन ले लूँ, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारा फर्स्ट मतलब क्या उसका आंसर होगा फर्स्ट, कि क्या तुम उसको एडवाइस करोगे और किस तरीके से तुम उसको नेविगेट करने में मदद करोगे इन ज्योग्राफी ऑप्शनल. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. इससे एंड करते हैं. सर मेरा कोई आई विल टेक लाइक मेरा भाई ही है कोई, तो आई विल एडवाइज कि ज्योग्राफी इज अ वेरी गुड ऑप्शनल, लेकिन वो सर के नोट्स मार्केट में मिल जाते हैं, एक बार पढ़े. और भी जो 2 ऑप्शनल हैं, एक कोई ऑप्शनल है उसको करे. लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शनल है अगर आप सर के यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स स्पेशली. एंड 500+ कोर्स इज टॉप नॉच कोर्स, यू डोंट फाइंड एनीवेयर इन द इंडिया सर, in UPSC. So it benefits a lot in a lot of papers, and so if you are planning accordingly, it's a foundation classes, 500+ classes, and you are limiting yourself to the test series and you are making the required revisions, and you are able to replicate in the exam, I can assure you that you will be not regretting your choice for the optional, and it will be benefiting you in the all other phases of the exam also. So it is a very good optional, and a lot of students of sir have been scoring more than 300 for last many years. So as an optional, sir, it's a very good subject, I think. Sure. Fairly agree with Rajiv. I think geography ऑप्शनल में या सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कि ना ही मार्किंग स्कीम में भी कोई प्रॉब्लम है. मार्क्स इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि हम लिखते नहीं है ढंग का. Very good. वो है बेसिक इशू, और वो रियलाइज करना होगा, अदरवाइज वो एक अपना ही विशियस साइकिल में रहेंगे. सो आई थिंक अगर इफ अ न्यू स्टूडेंट इज कमिंग, आई वुड से कि पहले तो ज्योग्राफी ऑप्शनल को आप समझो, और दूसरा जैसा कि राजीव ने कहा कि यू हैव टू डू द बेसिक रिसर्च योरसेल्फ, go out in the market and see whatever notes are there. And if you want my experience, तो मैंने भी around 6 attempt दिए हैं, तो my experience with geography is a very long term. What benefited me was of course sir's classes. After in the last 3 months जो मेरा मेंस था, तो उसमें जो भी सर ने बताया, ठीक है, फॉर एग्जांपल
जो रिवीजन प्रोसेस था Hmm. 7 रिवीजन्स वाला, इनफैक्ट आई डिड नॉट वेवर्ड, मैंने कोई वैल्यूएशन एक्सेप्ट फॉर दोस 500 क्लासेस नहीं की, है ना। आपने वो एक केस स्टडीज वाला एक्सटर्नल वो मॉड्यूल, मुझे Compilation. समय ही नहीं मिला उन चीजों को देखने का। ठीक है, तो जो बेसिक वो 500 क्लास थी, 500 क्वेश्चन थे, उनका ही अराउंड 5 से 6 बार रिवीजन। सर ने 7 रिवीजन का प्लान बना था, बट मेरे से 5-6 बार वही बहुत है अपने आप में. हाँ, और फिर वो अल्टीमेटली एग्जाम के दौरान चीजें बहुत नेचुरली हुई। सो आई थिंक इफ फाउंडेशनल क्लासेस अगर आपको करनी है, तो इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन दैट, आई वुड से गो फॉर हिमांशु सर। ठीक है, so we will be ending this particular session. हिमांशु सर कुछ बोलना है आपको? नहीं, बस द थिंग इज कि हर चीज जब आप स्टार्ट करते हो, मेरे से अगर कोई पूछेगा यही क्वेश्चन, अगर तुम मुझसे पूछते हो, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि सबसे जो पहली चीज है अपना ऑप्शन चूज करने में, वो इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए. दीज आर द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट. अगर ये दोनों पैरामीटर्स हैं, तो देन एवरी ऑप्शनल इफ यू टॉक अबाउट हैज इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग यू सेलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन. यूपीएससी की तरफ से कोई बायसनेस नहीं है. ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड. कई बार होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एप्टीट्यूड, मैं इसलिए बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ. कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और उनको कुछ चीजों में दिक्कत होती है, जैसे फंडामेंटल जो ज्योग्राफी का एक एप्टीट्यूड चाहिए. जैसे कि कुछ बच्चों को डायग्राम एक बहुत ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस लगता है. ठीक है, हालांकि मुझे लगता है कि अगर वो आप किसी तरह से मेहनत करके सीख लो, तो ओवरऑल आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में, जीएस में, वो बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज इट इज सिंपली अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन. बट कुछ लोगों के साथ है कि दे आर अनएबल टू कोप अप विद दैट. तो वो जो बेसिक कुछ एप्टीट्यूड्स आपको लगता है कि नहीं है, आप एनसीईआरटीज पढ़ो, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज द काइंड ऑफ एप्टीट्यूड यू हैव. ठीक है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होना चाहिए. देन द सेकेंड थिंग इज, देन यू ट्राई टू लुक फॉर द मोस्ट रेलेवेंट सोर्स. ठीक है, क्योंकि जब हम चूज कर लेते हैं, कई बार हम सही रास्ता चूज भी कर लेते हैं, बट उस पर चलना कैसे है, वो अगर गड़बड़ हो गया तो देन अगेन देयर विल बी प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो वो सेकंड स्टेप पे आप चूज करो कि वेयर यू हैव टू डू. अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा रिसर्च नहीं करते. ठीक है, आप जीएस की क्लासेस ज्वाइन कर लो विदाउट रिसर्च, वो चल जाता है, बिकॉज जीएस एक ऐसा डोमेन है जहां पर आप जनरल चीजें पूछी जाती हैं, और एक बंदा जो है वो खुद से भी पढ़ के जीएस के जो बुक्स हैं वो खुद से कर सकता है. बट जैसे ही आप ऑप्शनल में एंटर करते हो, तो ऑप्शनल एक थोड़ा टेक्निकल डोमेन हो जाता है, और वहां पर आप ये सोचो कि मैं खुद से सारी चीजें पढ़ के और खुद से कर लूंगा, ये थोड़ा सा मुश्किल बात हो जाती है. इसलिए ऑप्शनल की जब क्लासेस चूज करना फाउंडेशन के लिए या जो भी क्लासेस हों, तो वहां पर बहुत कॉशियस होना चाहिए और वहां पर रिसर्च करके क्लासेस को चूज करना चाहिए. और मुझे लगता है कि इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आप सपोज somehow you can come to ORN, और now there are availabilities even online, तो आप जो जो भी आप सपोज करो कि चूज करते हो कि ये 2 क्लासेस हैं, सपोज इनमें मुझे कंफ्यूजन है, तो उनके नोट्स मंगाओ और देख लो कि कहाँ पर ज्यादा बेटर है. ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट इज द एरिया वेयर यू शुड लुक ऑन. ठीक है, और बाकी बोथ वी विल इंटरैक्ट अगेन. अभी तो मार्क्स भी नहीं आए हैं. पॉइंट मेरे को बोलना है. हाँ राज. सर डायग्राम वाले में आपने बोला, मेरी सर ड्राइंग बहुत गंदी है लेकिन मैंने फील किया है सर, 2 डायग्राम, एक इंडिया वाला और एक वर्ल्ड वाला, मैप थोड़ा सा भी सही सा बन जाता है, उसको पार्शियल बनाते हैं, पूरा बनाते हैं, उतने से भी सर काम चल जाता है. चला ही है. बिकॉज देखो, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि डायग्राम्स में आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स नहीं जज की जा रही है, वहां पर जज किया जा रहा है कि आपने जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है वो करेक्ट है या नहीं. ठीक है, दैट इज व्हाट इज बीइंग जज, बिकॉज डायग्राम इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन को इजी कर देता है. ठीक है, तो वी विल एंड दिस पर्टिकुलर सेशन एंड द मार्कशीट्स आर स्टिल नॉट आउट. तो एक बार मार्कशीट आ जाती है, उसके बाद देखेंगे कि कितना स्कोर हुआ है एक्चुअली. एंड जो भी इनकी evaluation copies हैं, we will be posting on a telegram, and we will also be pinning the telegram channels if you have,
in our description of the YouTube title. और फिर वापस we will be again connecting after the mark sheets are out and we will see कि कैसा स्कोर रहा है. तब हम स्ट्रेटजी पे पर्टिकुलर हाँ. स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे डिटेल में. Yes, ठीक yes, है ना? yes. अभी तो एक जनरल बस डिस्कशन है. ओके. चलो, okay.